Hello students. I am Pallav Darbari. Welcome you all in my YouTube channel, Pallav Darbari Classes. In this video, I will discuss Macroeconomics Class 12th. The name of the chapter is National Income Accounting. This is my 12th video on the topic National Income Accounting. In this video, let us see how we can apply and how we can solve the national income by applying the value added method. Let us solve the question. This is the question that we have to solve. In this question, we have to find out what we have to find out. We have to find out value added by the firm A and firm B, and we also have to calculate the gross value added or GDP at factor cost. These two informations, these two things I have to find it out. Okay, fine. Firstly, draw the format. Particulars firm A, firm B, firm C, total. Firstly, we have to draw the format. What we have to do, we have to find out the value added. To find out the value added, what we have to do is we have to write down sales. In the sale, what we have to do, we have to add. What we have to add? We have to add change in stock. Change in stock means, it means closing minus opening stock. Okay. Then what we will get? We will get value of output. Okay. Value of output. Then what we have to do? We have to deduct intermediate consumption. Intermediate consumption means what? It means purchases. After deducting, what we will get? We will get GVA or GDP MP. Then what we have to do is we have to deduct NIT. Why we have to deduct NIT? Because we have to find out factor cost from the market price, and we know the concept that is Germany ne nahi di mujhe Ferrari. If we have to convert MP to FC, then what we have to do? We have to deduct NIT. NIT means indirect tax minus subsidies. So we have drawn the format. Now we will read the question and write down the information. I am changing the color. Okay. First is sales by the firm A. Remember, here the total sale is given. Total sale by the firm A and the total sale by the firm B is given to us. So what is the sale? Sale by the firm A is 100. So I write down over here 100. Then the purchase from B by A. So A's purchase is given to us. Purchase means intermediate consumption. So it is 40. So I write down over here 40. Then purchase from A by the firm B. So the B's purchase is also written. I write down over here 60. Okay. Sale by firm B 200. I write down over here 200. Total will be 300. आप देख सकते हो. Total is coming 300. Then closing stock is written. In the case of A, closing stock is 20. In the find out the opening stock. Finding opening stock is 25. We know that closing minus opening is change in stock, and we have to consider change in stock. हमने यहाँ पे change in stock लेना है. How we can calculate the change in stock? Change in stock का मतलब क्या होगा? Closing में से opening minus करो. What is closing? Closing is 20 and the opening is 25. So we will get minus 5 in the case of A. Okay. मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ so that we should know कि ये हो चुका है. In the case of the B, closing stock is 35 and opening stock is 45. So what we क्या आएगा? So we will get 35 minus 45 minus 10. Okay. Here total is 15. ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 95 will come. Here 190 will come and the total will be 285. Cross verified. 190 plus 95, 180, 285 is there. Okay. Here the total value of the intermediate will be 100. 60 plus 40 100 ही आएगा. Here it will be 185. ठीक है.
इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन 30। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है आपको 30। इफ यू चेक द क्वेश्चन यू विल नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ द सब्सिडीज की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब मैं मानूंगा यहाँ जीरो होगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना निकल के आ रहा है, इंडिविजुअली इट इज नॉट गिवन। वैसे भी हमें यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है, और हमेशा याद रखिएगा इंडिविजुअल के केसेस में जो टोटल होता है उसे कहते हैं वैल्यू एडेड, और जो सम टोटल होता है यानी वैल्यू एडेड ऑफ ए वैल्यू एडेड ऑफ बी वो कहलाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड तो कंट्री का ही होगा, समीशन ही होगा। तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका आएगा 30, 30 माइनस जीरो 30 होगा आपका। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 30। यहाँ पे देखते हैं कितना आता है, 5 and 1। So answer will be 155 lakh। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने रीड आउट करना है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। आपने यहाँ देखा मुझे वैल्यू एडेड निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा मुझे ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद वी हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू इन द फॉर्मेट एंड वी विल गेट द आंसर। आंसर बिल्कुल सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चलेंगे। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, लेट अस सी। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है आपने, ओके। एक और चीज कैलकुलेट करनी है, वो क्या करनी है आपने, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है हम लोग पहले भी देख चुके हैं पुराने वीडियो में। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एफसी, क्लियर। फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे आप, पर्टिकुलर्स, ओके। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं रुपीज इन लैख, आपको वैसे भी लैख में गिवन है। चलिए फॉर्मेट के लिए मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे सेल्स गिवन नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है। तो मैं यहाँ आउटपुट से चलूंगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट से। यहाँ लिखता हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट। हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में माइनस करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट में यही लूंगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, आप जानते हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 3 सेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेक्टर्स लिख लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होगा, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। चलिए यहां भी देख सकते हो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के केस में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर तीनों का अलग दे रखा है, बहुत बढ़िया। इसको कंसीडर करने के बाद क्या निकल के आएगा, इसको कंसीडर अगर मैं करूंगा तो आपका निकल के आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। यानी ये निकल के आ जाएगा। मुझे कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। आप जानते हो जर्मनी ने नहीं दी मुझे फरारी कॉन्सेप्ट, जर्मनी ने नहीं दी मुझे फरारी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन, ओके। इसका मतलब होता है एनएफआईए, एनएफआईए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। चलिए एनआईटी, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेके चलना है। अब आपको नेशनल इनकम चाहिए, इसका मतलब जी को आप नेट में कन्वर्ट करोगे, इसका मतलब आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। आप देख सकते हो अगर मैं जी से नेट में जाऊंगा तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, दिख रहा है ना आपको माइनस, ओके। अब क्या करना है आपने, आपने नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐड कर दूंगा एनएफआईए। आप देख सकते हो अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करूंगा, प्लस करूंगा एनएफआईए। एनएफआईए मतलब होता है फैक्टर इनकम फीफा माइनस फीटा। यहां लिख दे रहा हूं फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। यानी आपका ये भी सही हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, नेशनल इनकम के लिए मुझे एमपी से एफसी में जाना है, यानी एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे आप। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ओके। चलिए इसे कंसीडर करने के बाद मेरा निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल इनकम एनएनपी एफसी। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं।
सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा हुआ है आपका, और तीनों सेक्टर का इंडिविजुअली दे रखा है आपको। प्राइमरी, प्राइमरी का कितना है भाई, प्राइमरी का है 800, लिख दिया यहाँ पे हमने। फिर है सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर का कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का 200, ओके। फिर टर्सरी सेक्टर का कितना है, टर्सरी सेक्टर का आ रहा है आपका 300। तो टोटल अगर आप करोगे तो आपका आ जाएगा 1300 लाख। चलिए आपने वैल्यू ऑफ इनपुट आउटपुट ले लिया। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, पी लिख रहा हूँ फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी के लिए एस लिख रहा हूँ, और टर्सरी के लिए टी लिख रहा हूँ, ठीक है। प्राइमरी कितना है आपका, प्राइमरी आप देख सकते हो 400 आ रहा है, ओके। सेकेंडरी कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ओके। और टर्सरी कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। टोटल अगर आप करोगे तो आपका आ जाएगा 550। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये आ गया 50, ये आ गया 7। आप देखो तो ये निकल के आएगा आपका 750। ठीक है, अब क्या करना है आपने, ये आपने कर लिया। यहां देख सकते हो सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्वेश्चन पढ़ना है आपने। आपका लिखा हुआ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस सॉरी, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा हुआ है, आप यहां ऊपर लिख दीजिएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल के आ रहा है 50, मैंने कॉपी कर लिया 50, ओके फाइन। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन कितना लिखा हुआ है आपका, 180 लिखा हुआ है, ओके। आई जस्ट राइट डाउन 80 ओवर हियर, ओके लिख लिया। माइनस करना है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, माइनस है। आप देख सकते हो फैक्टर इनकम फ्रॉम है, यानी फीफा कितना है आपका 10, यहां लिख लिया। उसके बाद फैक्टर इनकम 2, यानी फीटा कितना है 20। तो आपने यहां देखा कि आपका ये निकल के आ रहा है एनएफआई, ये निगेटिव में आ रहा है आपका, कितना निगेटिव में आ रहा है 10 आपका, ओके वाओ। सब्सिडीज आपको दे रखा है 20, ठीक है, ये आपने कर दिया 20, यानी ये आपका आ गया 30। नेट इनडायरेक्ट टैक्स से मुझे माइनस ही करना है, तो ये आपका आ गया 30, ओके। कितना डिडक्ट करना है आपका, आप देख सकते हो 80 90, यानी 120 आपने डिडक्ट करना है, ठीक है। तो आप 120 डिडक्ट कर दीजिएगा, किसमें से डिडक्ट करना है आपका, 750 में 120 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 630, फाइन। तो आपका आ गया 630। एक बार चेक कर लेते हैं, टोटल 1300 है, ये आपका 750 आ गया। कैलकुलेटर को यूज करते हैं, चलिए। 1300 है, 1300, इसमें आपने माइनस किया 550, 750 आ गया। फिर आपने माइनस किया 80, बढ़िया। फिर आपने माइनस किया 40, 630। चलिए टोटल सही आ रहा है 630, दैट इज योर आंसर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। सिंपल क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, इन दिस वेरी क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, पहला स्टेप, ठीक है। मैं ब्लैक कलर रख रहा हूं फॉर्मेट के लिए। सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखते हैं रुपीज इन, आपको किसमें दे रखा है, लैक्स, लिख देते हैं यहां पे इन लैक्स, ओके। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स। सेल्स में हम लोग क्या करते हैं, वी विल ऐड चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। क्या निकल के आएगा, चेंज इन स्टॉक प्लस करने के बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। क्या माइनस करेंगे हम लोग, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। चलिए
वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चीज याद रखिएगा, वी हैव टू कंसिडर द सेल। सेल मींस टोटल सेल। हियर द डोमेस्टिक सेल इज गिवन टू अस एंड द एक्सपोर्ट इज आल्सो सेल, इंटरनेशनल सेल। तो आपको टोटल सेल कितना है 200 प्लस 10, तो टोटल सेल इज 210। ज्यादातर मिस्टेक हो जाती है लोगों की, लोग 200 लेके चलेंगे, एक्सपोर्ट को छोड़ देंगे। हमें सेल लेना है, सेल का मतलब यहाँ टोटल सेल है। टोटल सेल कितना होगा, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, तो टोटल सेल इज 210। चेंज इन स्टॉक माइनस 10, ओके, कितना आया, ये आ गया आपका 200, ओके फाइन। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आप देख सकते हो यूज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। भाई सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ड्यूरेबल गुड्स, सॉरी नॉन ड्यूरेबल गुड्स, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल बार बार तो यूज करता नहीं बंदा, ठीक है। 120 आ गया आपका, माइनस करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, देखते हैं 80, ठीक है। कितना आंसर आ गया 80। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ज्यादा समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो सीबीएसई दिल्ली 2016 का क्वेश्चन है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमने ये कैलकुलेट करना है। नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस की बात करूं या फिर हम लोग बात करें डोमेस्टिक एनडीपी एमपी की, मतलब एक ही होता है। हमने ये कैलकुलेट करना है, ओके फाइन। सबसे पहला काम फॉर्मेट ड्रॉ करने का है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पे लिख देते हैं रुपीज इन लैख, ओके। चलिए सबसे पहले यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा सेल्स। चलिए यहाँ सेल्स लिख दिया। सेल्स में मैं क्या ऐड करूंगा, चेंज इन स्टॉक। चलिए चेंज इन स्टॉक, क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या माइनस करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। इसे माइनस करने के बाद क्या निकल के आएगा, इसे माइनस करने के बाद निकल के आएगा जीडीपी एमपी। मुझे चाहिए क्या, मुझे नेट चाहिए। आप भी जानते हो जर्मनी ने नहीं दी मुझे फरारी कॉन्सेप्ट, तो अगर मुझे जी से एन में जाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा नेट यानी डेप्रिसिएशन। चलिए माइनस कर दिया, क्या निकल के आएगा जीडीपी एमपी। आपने ड्रॉ कर दिया फॉर्मेट। अब एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिक्स कैपिटल गुड्स वर्थ विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 इयर्स। डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू दे रखी है। अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन मेथड होता है आपका। आपको टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट दे रखा है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 है, लाइफ आपको दे रखी है 5। फॉर्मूला होता था डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला था बताया तो आपको, टोटल एसेट्स माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट है 15, स्क्रैप वैल्यू 0 है, लाइफ है 5, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा 3। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख लीजिएगा, डेप्रिसिएशन आपका आ रहा है 3, ओके। रॉ मटेरियल इसका मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कितना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन भाई 6 लिख लिया मैंने यहाँ पे। बिल्कुल सीक्वेंस में चलना होता है। सेल्स है आपका 25, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, सीक्वेंस में करते जाओ। फिर आपका ये आ रहा है चेंज इन स्टॉक नेगेटिव में -2, कितना आ गया आपका 23, वेरी गुड। टैक्स लिखा हुआ है, टैक्स का कुछ करोगे, फॉर्मूले में टैक्स का यहां भी नहीं रहा, भूल जाइए। अब देखते हैं इसमें आपका है 23, 23 में से आप 6 माइनस करोगे, कितना निकल के आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 17, आप देख सकते हो। और डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, कितना निकल के आ जाएगा आपका 14। सो आपका आंसर कितना आ गया 14 लाख। सो एनडीपी एमपी कितना आ गया आपका 14 लाख। एनडीपी एमपी बोलूं या फिर नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलूं, बोथ आर द सेम थिंग। समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग गो थ्रू कर लेंगे। वी विल डिस्कस एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चन जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना रहे। पेपर सॉल्व यानी आपके सामने पेपर आएगा, पेपर में आपका आएगा वाह सारे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए खैर, इसमें मुझे करना क्या है, इन दिस क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपने, इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम निकालना है आपने। वेरी गुड, फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सेम थिंग, पहले हम लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं, पर्टिकुलर्स हो गया, यहां पे लिखेंगे रुपीज इन लैख। चलिए, यहां पे आपका आ गया सेल्स, बहुत बढ़िया। सेल्स में मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा चेंज इन स्टॉक, यहां लिख देते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को कंसिडर करने के बाद क्या निकल के आता है भाई, इसके बाद निकल के आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें क्या करूंगा, इसमें माइनस करूंगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यहां पे इंटरमीडिएट लिख रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना भाई, इंटरमीडिएट का मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। क्या निकल के आएगा, यहां आ जाएगा आपका जीवीए एमपी। भाई जी से अगर नेट में जाओगे तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन कैसे, भाई हमने देखा है जर्मनी ने नहीं दी मुझे फरारी, ठीक है, जी से एन में डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, यानी आपका ये सही हो गया। फिर आपको क्या चाहिए, आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालूंगा, माइनस कर दूंगा एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा भाई, ये निकल के आ जाएगा आपका, सॉरी, डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एफसी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका मतलब हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, कितना है भाई 25, पेन चेंज कर रहा हूं, यहां लिख दीजिएगा 25 इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन इज गिवन टू यू, बिल्कुल है, हमें कंसीडर करना है भाई, डेप्रिसिएशन लिख लिया मैंने यहाँ पे, डेप्रिसिएशन भी ओके। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10, ओपनिंग स्टॉक कितना है 20, यानी चेंज इन स्टॉक हो गया नेगेटिव में, क्योंकि आप जानते हो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिखना है आपने। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स हम कभी भी कंसिडर नहीं करते, आप देख सकते हो यहाँ पे। एक चीज याद रखिएगा, कॉर्पोरेट टैक्स हम लोग कंसिडर करते हैं एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम मेथड में, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। अब वैल्यू एडेड मेथड में प्रॉफिट तो आपने लेना नहीं है, इसका मतलब ये भूल जाइए, वी डोंट हैव टू कंसिडर इट। अब यहाँ सेल्स लिखा हुआ है 540, आई जस्ट कॉपी इट 540 ओवर हियर, यहाँ पे ये आ जाएगा 530, बहुत बढ़िया। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो 140 इज रिटन ओवर हियर, सो मैं 140 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आपका है 530, 530 में से आपने माइनस किया 140, ये निकल के आ गया आपका 390 लाख, इसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया। अच्छा यार सब्सिडीज आपको गिवन नहीं है, तो सब्सिडीज मान लूंगा जीरो है आपका, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 नेगेटिव, ठीक है। 25 और 5 आपका 30 हो गया। चलिए माइनस कर देते हैं टोटल इसमें 30, तो आपका डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगा 360। सो व्हाट विल बी द डोमेस्टिक इनकम, आवर डोमेस्टिक इनकम इज 360 लाख। क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन दिस वेरी क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, इस क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। चलिए पहला स्टेप फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं, पर्टिकुलर्स, यहां पे डाल दीजिएगा रुपीज इन लैख, लिख दिया भाई। चलिए आपने निकालना क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालना है। सबसे पहले आप लेंगे सेल्स, सेल्स में आप प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आप भी जानते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, यहां लिख भी देता हूं मैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्या निकल के आएगा आपका, इसको निकल करने के बाद आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, कॉपी कर देते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है।
वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या करूंगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करूंगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या निकल के आएगा आपका, जो चाहिए, क्या चाहिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके, पेन चेंज करते हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। चलिए रीड द क्वेश्चन वन बाय वन। चलिए अब स्टेप फॉलो करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है। फॉर्मेट में कहीं इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है, नहीं आ रहा, भूल जाइए। फिर क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन। फॉर्मेट में कहीं डेप्रिसिएशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, हटाओ। क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल आएगा भाई, 20 क्लोजिंग स्टॉक है। चलिए क्लोजिंग स्टॉक है 20। सेल बिल्कुल लिखे है, बिना इसके तो ऐसे ही काम नहीं होता, लिख लिया आपने। सब्सिडीज है, कहीं दिख रहा है आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस, नहीं, भूल जाइए, भूल गए। फिर आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, यानी 400 रुपीज है, 400 करोड़ है, लिख लिया आपने 400, ये आ गया, सॉरी 400 लाख लिख लिया आपने। चलिए ओपनिंग स्टॉक है आपका 10, चलिए -10, तो आपका चेंज इन स्टॉक आ गया 10 प्लस कितना आ गया, 710। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ गया 710, 400 माइनस करोगे आप इसमें, 710 माइनस 400, आंसर निकल के आएगा आपका, क्या निकल के आएगा, हाँ जी, इतने दूर हो यार, सुनाई भी नहीं देता। चलिए कोई बात नहीं, 310 आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही होता है भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आप देख सकते हो, हमें वैल्यू एडेड निकालना है। किसका निकालना है, फर्म एक्स का निकालना है, फर्म वाई का निकालना है। चलिए सबसे पहला काम फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। चलिए जी, कर लिया जी, कर लिया जी, कर लिया जी। ओके, यहां पे मैंने गलती से फर्म ए लिख दिया है, इसे सही कर लें। चलिए ये आपका आ रहा है एक्स का, ये आ रहा है वाई का, ठीक है, ये आ गया। फॉर्मेट में क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने लिखना है सेल्स। चलिए यहां लिखा देते सेल्स। सेल्स में क्या करना है आपने, आपने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है, ये होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बताया तो था, भूल जाते हो तुम। चलिए इसे करने के बाद क्या निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। चलिए आ गया। अब क्या करूंगा मैं डिडक्ट करूंगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, बिल्कुल सही, परचेज। बोला भी था क्या, पता नहीं, बोला ही होगा। चलिए खैर, अब क्या करना है आपने, अब आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा, सॉरी वैल्यू एडेड निकल के आ जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, फर्म एक्स का वैल्यू एडेड, फर्म वाई का वैल्यू एडेड एंड कलेक्टिवली ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले यहां देखते हैं, चेंज इन स्टॉक एक्स का, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक एक्स का लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक एक्स का लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहां पे आपका आ रहा है 15, 20 माइनस 5 तो 15 ही आएगा, प्लस में है, बहुत बढ़िया। यहां पे वाई का देखते हैं, 15 है क्लोजिंग और ओपनिंग है 10, कितना आएगा, 5 आएगा। यहां भी लिख लेते हैं 20 आ गया, चलिए बढ़िया। यानी आपने जो जो ले लिया उसे मैं टिक कर रहा हूं। सेल्स आप देख सकते हो एक्स का, यानी टोटल सेल गिवन है एक्स का, मैंने यहां लिख दिया 300, बहुत बढ़िया, इसे टिक कर दीजिएगा। परचेज आप देख सकते हो, परचेज है बाय फर्म एक्स, यानी एक्स की परचेज कितनी है आपकी 100, यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक्स की परचेज आपको जो है वो इंडिविजुअल दे रखी है, टोटल परचेज तो लिखा नहीं हुआ। परचेज जो वाई की है वो कितनी है 80, चलिए 80 लिख लेते हैं। चलिए सेल वाई की टोटल है, चलिए लिख लेते हैं, कितनी आ रही है 250, ओके 250 आ गई। यहां पे टोटल आ गया 550, चलिए ये भी टिक कर देते हैं। अब यहां पे आप देखोगे इंपोर्ट लिखा हुआ है आपका एक्स का इंपोर्ट कितना है 50 है। अब मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या एक्स के केस में टोटल परचेज गिवन थी, नहीं नहीं, आप कह रहे हैं एक्स ने वाई से खरीदा है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इंडिविजुअल परचेज है, टोटल परचेज नहीं गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन 50 कंसिडर करेंगे। तो टोटल परचेज कितनी आ जाएगी, आप देख सकते हो 150, ओके। एक्सपोर्ट है वाई का 30, वी कैन सी ओवर हियर
Export means sales. Since the total sale is given to us, it means we don't have to consider export. Total sale given है, export sale ही होता है. जब total sale given हो तो भाई इंडिविजुअली तो लोगे नहीं आप, इसे भूल जाइए 30 को. चलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल के चलते हैं. सबसे पहले आप यहां पे देखिए, सेल्स था आपका 300, 15 आपने ऐड किया, क्या निकल के आ गया आपका, ये आ गया आपका, ऐड करूंगा तो कितना आएगा 315, यहां पे ऐड करूंगा कितना आएगा 2550, यहां पे करूंगा कितना आएगा, सॉरी 255, यहां पे करूंगा कितना आएगा 570. बहुत बढ़िया. अब यहां पे 150 माइनस करना, यहां पे 315 में से 150 माइनस करना है, 315 माइनस 150, ये आ गया आपका 165, यहां लिख दिया मैंने. अब यहां पे देखते हैं y के केस में 255 है, माइनस क्या करना है आपने, माइनस करना है 80. भाई परचेज तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो आपका माइनस ही होता है, तभी तो वैल्यू एडेड निकालोगे आप. वैल्यू एडेड का मतलब होता है एडिशन कितना हुआ है. चलिए यहां पे टोटल कितना आ रहा है, यहां भी देख लेते हैं भाई. 150 है, 150 में आपने ऐड किया 80, वी विल गेट 230. तो यहां भी आप देख सकते हो 230 आ रहा है. ओके, माइनस ही करना है. किस में से माइनस करना है आपने, 570 में से. कितना आ जाएगा आपका 340. क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आप इन दोनों को ऐड करके. अब देखो थोड़ा सा गलत आ रहा है, जरा सही कर लेते हैं. 255 है, माइनस करोगे 80 तो ये निकल के आएगा 175. देखो यही मिस्टेक होती है. खैर चलिए सही आ रहा है बिल्कुल आपका. सो वैल्यू एडेड निकल के आ गया. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं. यहां पे निकालना क्या है आपका, वैल्यू एडेड निकालना है. चलिए बहुत बढ़िया. ब्लैक पेन फॉर्मेट के लिए ले रहा हूं मैं. सबसे पहले यहां लेते हैं फर्म ए फर्म बी 2 लिखा हुआ है. चलिए बढ़िया है. पर्टिकुलर्स, ये आ गया आपका फर्म ए फर्म बी. चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्स, सेल्स में क्या करते हैं, ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक को. चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. बहुत बढ़िया. क्या निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट. उसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को. क्या निकल के आएगा आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड. इंडिविजुअल के केस में वैल्यू एडेड कहलाता है. ठीक है. चलिए कलर चेंज कर रहा हूं. चलिए अब यहां पे परचेज है, देख सकते हैं परचेज बाय फर्म बी. बी ने परचेज कितने का किया है, 40 का. तो बी के केस में परचेज में डाल देते हैं भैया इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40, यहां डाल दिया. किससे परचेज किया, ए से. अब ए की अगर सेल गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा. आप देख सकते हो ए के केस में सेल गिवन नहीं है, है ना. तो इसका मतलब ये 40 जो होगा वो ए के केस में सेल होगी, क्योंकि बी ने परचेज किया ए से तो ए की तो सेल होगी, बी की परचेज होगी. क्योंकि यहाँ पे ए की सेल नहीं दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया. अब यहाँ सेल बी की जो है वो कितनी है, आपको 80 गिवन है, मैंने यहाँ कॉपी कर लिया 80. बहुत बढ़िया, टिक लगाते जाइएगा. इंपोर्ट का मतलब परचेज ही होता है. इंपोर्ट आपका है 10 बी का. ठीक है लिख दीजिएगा, टोटल परचेज नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं इंपोर्ट कंसीडर कर रहा हूं. इंपोर्ट मतलब परचेज ही होता है. रेंट, रेंट बिल्कुल नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड ले रहे हो, रेंट से कुछ प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है. ओपनिंग स्टॉक बी का है 15 और बी का क्लोजिंग कितना है, बी का क्लोजिंग है 20. तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 प्लस आएगा, टिक कर दीजिएगा. परचेज आप देख सकते हो बाय फर्म ए, ए की परचेज कितना है आपकी 20, लिख दीजिएगा 20, लिख दिया, माइनस होगा. बहुत बढ़िया, टिक कर दीजिएगा. फर्म ए की परचेज है, किससे परचेज है, बी से. तो
बी की सेल है, लेकिन यहां पे मैं लिखूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि बी के केस में टोटल सेल गिवन थी, इसलिए मैं यहां लेने का सेंस बनता नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक आप देख सकते हो 20 है, ए का क्लोजिंग और ओपनिंग है 10, कितना आ जाएगा? 10 ही आएगा। चलिए, यहां पे हो गया आपका 50, यहां पे आपका आ गया 85। अब यहां पे देखते हैं कितना आ रहा है आपका। 50 में से 20 माइनस किया, ये आपका आ गया 30। बहुत बढ़िया। यहां पे है आपका 85, 85 में आप माइनस कर दीजिएगा 50, कितना निकल के आया? 35। तो आप देख सकते हो यहां पे वैल्यू एडेड निकल के आया ए फर्म के केस में 30, बी फर्म के केस में निकल के आया आपका 35। 85 माइनस 50 35 भी आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर होगा आपके लिए। चलिए, dear viewers, that's all I have in this video. If you like the video, spread the video as much as you can. During this pandemic time period, it's a request, please stay home, stay safe, and above all, don't forget to wear mask. Om Shanti.